And I'm going to share the screen as well. Okay. So text number 46. तस्य निहरणादीनि संपरे तस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखी तो भवत. Translation. O descendant of Bhrigu, Sonaka, after performing funeral rituals for the dead body of Bhishma Dev, Maharaj Yudhishthir was momentarily overtaken with grief. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए तस्य मीन्स हिज, निर्हरा आदिनी मीन्स फ्यूनरल सेरेमनी है जो अग्निदाह संस्कार बोलते हैं उसके उसको. संपरेतस्य ऑफ द डेड बॉडी, भीष्मदेव की डेड बॉडी. भार्गव ओ डिसेंडेंट ऑफ भृगु, यानी ये जो भृगु की डायनेस्टी है उसकी बात हो रही है. और युधिष्ठिर महाराज करा कराइत्वा मीन्स परफॉर्म, जो उन्होंने जो यानी दाह संस्कार का जो सेरेमनी परफॉर्म की उसकी बात है. मुहूर्तम यानी मोमेंट, और दुखितम यानी दुखिता यानी सब लोग दुखी हुए. अभवत बिकम. ठीक है. तो अभी कोई परपट पड़ेगा? I can read, Prabhuji. Okay, Mataji, thank you. Sorry, Yes. just give me. Yeah. Bhishmadev was not only a great family head of Maharaj Yudhishthir, but also he was a great philosopher and a friend to him, his brothers and his mother. Since Maharaj Pandu, the father of 5 brothers, headed by Maharaja Yudhishthir, had died. Sorry. माताजी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया. लेट्स वेट फॉर अ मिनट. माताजी आ गए वापस. Sorry, Prabhuji. कोई बात नहीं माताजी. Do you want me to continue? हाँ हाँ हाँ. Okay. Since Maharaj Pandu, the father of 5 brothers, headed by Maharaj Yudhishthir, had died, Bhishmadev was the most affectionate grandfather of the Pandavas, caretaker of the widow, daughter-in-law Kunti Devi. Although Maharaj Dhritarashtra, the elder uncle of Maharaj Yudhishthir, was there to look after them, his affection was more on the side of his 100 sons, headed by Duryodhana. Ultimately, a colossal clique was fabricated to deprive the 5 fatherless brothers of the rightful claim of the kingdom of Hastinapur. There was a great intrigue common in imperial palace, and the 5 brothers were exiled to the wilderness. But Bhishmadev was always a sincere, sympathetic well-wisher, grandfather, friend, and a philosopher to Maharaj Yudhishthir. Maharaj Yudhishthir, even up to the last moment of his life, he died very happily by seeing Maharaj Yudhishthir to the throne. Otherwise, he would have the last moment of his long ago quitted his material body instead of suffering agony over the undue suffering of the Pandavas. He was simply waiting for the opportune moment, because he was sure and certain that the sons of Pandu would come out victorious on the battlefield of Kurukshetra, as his lordship Sri Krishna was their protector. As a devotee of the Lord, he knew that the Lord's devotee cannot be vanquished at any time. Maharaj Yudhishthir was quite aware of all these good wishes of the Bhishmadev, and therefore he must have been feeling the great separation. He was sorry for the separation of the great soul, and not for the material body, which Bhishmadev relinquished. The funeral ceremony was necessary duty, although Bhishmadev was a liberated soul. Since Bhishmadev was without issue, the eldest grandson, namely Maharaj Yudhishthir, was the rightful person to perform this ceremony. It was a great boon to Bhishmadev that an equally great son of the family undertook the last rites of a great man. Sorry for the inconvenience, Prabhuji. कोई बात नहीं माताजी. थैंक यू माताजी.
तो ये जो वर्स है उसमें बताया गया है कि युधिष्ठिर महाराज हैज परफॉर्म द लास्ट राइट ऑफ द भीष्म देव, यानी भीष्म देव ने अपनी जब बॉडी छोड़ी, तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें पता है, अगर चलो मैं बताता हूँ कि भीष्मदेव जो आए थे वो वो भगवान के नित्य सेवक है, ठीक है। तो भगवान की कोई भी लीला चलती है तो जहां पे भी लीला चलती है तो भीष्मदेव एज अ सेवक यानी दास्य रस में अपनी ये सारी लीला करने चले जाते हैं, यानी उनकी लीला हर नित्य चलती है, यानी यहाँ पे खत्म हो गई तो कोई और प्लेनेट पे वो वापस से वही लीला में ज्वाइन हो गए, ठीक है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात हमें पता है कि अ, भीष्मदेव का बॉर्न जो बॉर्न हुआ था, तो अ, वो वसु थे पहले, यानी वसु थे। तो उनको श्राप मिला था, आई थिंक वशिष्ठ मुनि ने श्राप दिया था उनको कि आप पृथ्वी पर जाओगे और आपका वहां पे बॉर्न होगा, क्योंकि वो कुछ उनकी वाइफ ने उनको बोला था कि ये मुनि वशिष्ठ मुनि के आश्रम में ये जो कामधेनु गाय होती है, या ऐसा कुछ, हाँ कामधेनु गाय है, तो आप उसको चोरी करके लेके आओ। तो फिर वो चोरी करने गए और फिर पकड़े गए, तो फिर वशिष्ठ मुनि ने उनको श्राप दिया था कि आप पृथ्वी पर जन्म लोगे, ठीक है। तो और ऐसा भी हुआ था कि उन्होंने अपनी वाइफ के कहने पर किया था, तो फिर उनको ये भी बोला गया था कि आपको जो नेक्स्ट लाइफ मिलेगी वो आपकी यू यू वॉन्ट बी एबल टू मैरी, यानी आप ब्रह्मचारी रहोगे, ठीक है। तो वसु थे तो उनका अंश आया हुआ था, और दूसरी चीज कि वो नित्य सेवक है भगवान के, ठीक है। तो वो डायरेक्ट दूसरी लीला से भी आए हुए थे। तो यानी उस उनकी बॉडी में दो चीजें थी, एक वसु की सोल, और देखने जाए तो एक वसु की सोल और एक नित्य सेवक है उसकी सोल। जब वो मरे तो क्या हुआ कि जो वसु वाली सोल थी वो वापस वसु में चली गई, और जो एज ए नित्य सेवक वाली जो सोल थी वो वापस चली गई, ठीक है। ऐसा एक दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे तो ये युधिष्ठिर महाराज अपने, तो युधिष्ठिर महाराज हमें पता है कि वो धर्मराज है, ठीक है। यानी धर्मराज यानी यमराज के बेटे, ठीक है। तो वो वो यहाँ पे आए पृथ्वी पर, और उसके साथ वो भगवान के नित्य सेवक है, यानी जहाँ पे वो दूसरी जगह पे जो उनकी लीला खत्म हुई, तो भगवान की लीला खत्म हुई और यहाँ पे स्टार्ट हुई पृथ्वी पर, तो वापस से वो इस वाली सेवा में लग गए, ठीक है। तो यानी जब वो मरे तो उसका जो अंश था वो एक अंश था वो चला गया धर्मराजा के पास, यानी धर्मराजा के पास चला गया, और दूसरा वाला जो अंश था वो उनकी नित्य लीला, जो कृष्ण भगवान की जो सेवा लीलाएं चलती रहती है इटर्नल, उसमें चले गए, ठीक है। तो क्योंकि तभी तभी जाके हमने अभी जो महाभारत है ना उसमें लिखा गया है कि जब वो मरे तो स्वर्ग में चले गए, यानी युधिष्ठिर महाराज और सारे सारे पांडव लोग स्वर्ग में गए थे, वैसा हमने देखा भी है। तो वो भी गलत नहीं है। और अगर हम भागवतम की ओर से देखे जाए तो ये भगवान के ये प्योर डिवोटीज है, और उनकी जो लीला में भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो वहां पे अ, वो वहां पे भी चले जाते हैं, ठीक है। तो अभी देखने जाए तो ये कैसा होता है कि जब तक भगवान बोलते हैं कि भाई ओके, यू हैव टू स्टे इन दिस लीला फॉर दिस मच टाइम, तो वो सारे इसी लीला में रहते हैं, और फिर यहाँ पे जैसे लीला खत्म हो गई तो फिर वो वापस चले जाते हैं, ठीक है। अभी ऐसा लगेगा कि एक बॉडी में दो सोल कैसे रह सकती है। तो जैसे हम आचार्य ने वैसे ही बताया कि ऐसा ही है, क्योंकि क्या है कि वो बताते हैं कि जो हरिदास ठाकुर थे ना, ही वॉज अ वो जो थे ना, उनका वो किस 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 का कॉम्बिनेशन थे, वो प्रहलाद महाराज के थे, ब्रह्मा के थे, और कोई एक गोपा का नाम था, वो तीनों का कॉम्बिनेशन थे, यानी तब जाके वो पृथ्वी पे आए थे। जैसे फिर चैतन्य महाप्रभु की बात करो तो वो कृष्णा राधा रानी का कॉम्बिनेशन थे, ठीक, दोनों मिलके आए थे। और दूसरा चीज है कि यहाँ पे हम देखने जाए तो ये जब यहाँ पे बताया गया है कि युधिष्ठिर महाराज वॉज मोमेंटरीली ओवरटेकन विथ ग्रीफ,
तो यहाँ पे प्रभुपाद ने फर्स्ट लाइन में ही बता दिया है कि क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि भीष्मदेव वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट फैमिली हेड ऑफ महाराज युधिष्ठिर, but also he was a great philosopher and friend to him and his brother and his mother. तो भीष्मदेव का अटैचमेंट पांडवों के प्रति ज्यादा था कंपेयर टू कौरव की साइड, क्योंकि पहले से ही पता था कि कौरव थोड़ी उनकी हरकतें वैसी रहती थी, और पांडव थे तो वो अकेले थे, क्योंकि कुंती माता जी थी वो अकेली थी। पांडु महाराज उनके जो हस्बैंड थे वो श्राप के कारण पृथ्वी पर अभी जीवित नहीं थे, तो उनको उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तो फिर क्या था कि भीष्म देव थे, उन्होंने पहले से सारे पांडवों को और कुंती देवी की सही से देखभाल की थी। तो और दूसरी चीज है कि उन्होंने अकेले भी नहीं सेवा की थी, यानी उन्होंने अकेले ने भी देखभाल नहीं की थी। विदुर जी थे, उन्होंने भी वैसे ही उनकी देखभाल की थी। जैसे जब लाक्षागृह हुआ था तो विदुर जी को पता चल गया था, तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को ऐसा बोला जाता है कि मलेच्छ लैंग्वेज में बता दिया कि भाई, अगर उंदर होता है ना, अगर उंदर को पता है ना कि अ, अ, उसको कहाँ से निकलना है, हाउ टू गेट आउट ऑफ द होल, तो उसको फायर अफेक्ट नहीं करती है। तो यानी वैसे देखने जाए तो उन्होंने भी हेल्प काफी सारी की थी युधिष्ठिर महाराज और सारे पांडवों को, और कुंती माता जी को। ठीक है, तो आगे भी यहाँ पे बताया गया है कि ऑल दो महाराज धृतराष्ट्र, the elder uncle of Maharaj Yudhishthir was there to look after them. His affection was more on side of 100 sons headed by दुर्योधन। यानी धृतराष्ट्र महाराज भी थे, लेकिन उनको क्या था कि अ, उनके उनके जो कौरव कौरव थे, सारे 100 बच्चे थे, उनके प्रति ज्यादा अट्रैक्शन था कंपेयर टू सारे पांडवास। और उनको तो ऐसा ही था कि उनका खुद का बेटा ही राज सिंहासन संभाले, तो वो उतना ध्यान नहीं रखते थे। लेकिन भीष्म देव था तो वो पहले से ही, और पांडवों पे काफी सारे प्रॉब्लम्स आए थे। यहाँ पे बताया गया कि देयर वाज अ ग्रेट इंट्रिग कॉमन इन common in imperial places and the five brothers were exiled to the wilderness। यानी पांडवों पर कितने सारे प्रॉब्लम्स आए थे, जैसे ये लाक्षा गुरु वाला हो गया, फिर उनको सारे जो उनको चीटिंग से हरा दिया गया उसमें और वो चेस शतरंज में, और फिर उनको भेज दिया 13 साल के वनवास में। और फिर लास्ट ईयर जो अज्ञातवास था 1 साल का, उसमें भी वो पकड़े नहीं गए थे, फिर भी दुर्योधन ने बोला कि वो पकड़े गए, और फिर उनको जो वापस देना था जो सिंहासन, वो नहीं दिया। तो यानी काफी सारे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन भीष्मदेव अकेले ही थे कि ही वॉज Bhishmadev was always sincere, sympathetic, well-wisher, grandfather, friend, philosopher to महाराज युधिष्ठिर and even into the last moment of his life। ठीक है, तो जब तक भीष्मदेव थे, तो उनको पांडवों के प्रति बहुत ही एक एक अफेक्शन था कि नहीं, ये सही है और ये सही कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए बहुत लव रहा, उनके लिए उनको उनके लिए उन्होंने पहले से बहुत सारी सिंपैथी रही थी। और जब देखो, अभी एंड में भी बताया गया है कि जब भीष्मदेव को बाणों की सैया पे लेटे हुए, यानी युद्ध शुरू हुआ उसके 10वें दिन ही भीष्मदेव को सारे बाण लगे, और वो फिर ही वॉज आउट ऑफ द वॉर, एंड फिर वो सारे पूरी बॉडी पर बाणों की सैया पे लेटे हुए थे, तो उनको इतना इतना सारा पेन हो रहा था। और यहाँ पे शास्त्रों में बताया गया है कि जिस दिन से उनको वो सारे बाण लगे, उसके बाद वो 58 डेज तक वो वहां पे पेन सहन करते रहे। और देख क्यों क्यों पेन सहन कर रहे कि क्योंकि उनको देखना था कि युधिष्ठिर महाराज को, वो उनको देखना था कि वो थ्रोन एक्सेप्ट करे, और थ्रोन पे यानी वो सज धज के आए और उनको मिले। और दूसरी भगवान की लीला भी थी साथ में कि
दूसरी लीलाएं भी थी, क्योंकि उनको पता था, भगवान को पता था, और भगवान और भक्त की लीलाएं वैसी होती थी, कुछ लीलाओं भगवान भक्त को पता होती है। तो फिर उनको ये भी पता था कि युधिष्ठिर महाराज बिविल्डर हो जाएंगे और उनको थोड़ा नॉलेज भी देना है। तो वो काम भी हो जाएगी, तो उसकी वजह से उन्होंने 58 डेज तक जो भी पेन था उसको उन्होंने सहन किया। ठीक है। और अ, तो बस यही चीज है यहाँ पे बताई गई है। और लास्ट में क्या बताए थे, हाँ, लास्ट में ये बताया गया है कि द फ्यूनरल सेरेमनी वाज नेसेसरी ड्यूटी ऑल द भीष्मदेव वाज अ लिबरेटेड सोल सिंस भीष्मदेव वाज विदाउट इश्यू द एल्डेस्ट grandson, namely Maharaj Yudhishthir, was the rightful person to perform this ceremony. तो भीष्म देव अकेले थे, उनकी वो बाय बर्थ वो ब्रह्मचारी रहे, तो उनकी फैमिली में कोई नहीं था, फैमिली थी नहीं इनफैक्ट। तो ये जो युधिष्ठिर महाराज थे, ही वॉज द एल्डर सन एंड ही वॉज द राइट पर्सन टू परफॉर्म दिस सेरेमनी। तो उन्होंने अग्नि संस्कार वगैरह युधिष्ठिर महाराज ने किया। तो युधिष्ठिर महाराज को एक दूसरा रीजन यही बताया गया है कि वो क्यों थोड़े ग्रीफ में चले गए, क्योंकि क्या होता है कि एक डिवोटी एसोसिएशन होता है, वो सबसे अच्छा होता है अपनी भक्ति बनाए रखने के लिए। ठीक है। और यहाँ पर वो डिवोटी एसोसिएशन एज अ फैमिली काउंट करो या एज अ वेल विशर काउंट करो, तो वो सारा कुछ भीष्म देव थे। तो यहाँ पर इसकी वजह से बताया गया है कि युधिष्ठिर महाराज मोमेंटरली ओवरटेकन विथ ग्रीफ। ठीक है। तो ये वर्ष में यही समझाया गया है। भी नेक्स्ट वाला वर्ष करते हैं। टेक्स्ट 47। तस्तुबुरमुनयो हृष्टाः कृष्णं तदगुह्य नामभिः ततस्ते कृष्ण हृदयाः स्वाश्रमान प्रपयुः पुनः। Okay. All the great sages then glorified Lord Sri Krishna, who was present there, by confidential Vedic hymns. Then all of them returned to their respective hermitages, bearing always Lord Krishna within their hearts. तो यहाँ पे बताया गया है कि अ, अभी सारे लोग वापस जाने लगे, तो लेकिन जाने से पहले उन्होंने कृष्ण भगवान की स्तुति की, क्योंकि उनको पता था कि कृष्ण भगवान ही मेन खुद कृष्ण भगवान ही भगवान है, सुप्रीम लॉर्ड है। ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे हु वॉज प्रेजेंट देयर बाय कॉन्फिडेंशियल वैदिक हिम्स, तो उस पे बात की है यहाँ पे। एंड देन ऑल ऑफ देम रिटर्न विद रिस्पेक्टिव हर्मिटेज, यानी अपनी अपनी जगह पे वापस चले गए, बियरिंग ऑलवेज कृष्णा, ऑलवेज लॉर्ड कृष्णा विद इन देयर हार्ट। भगवान को अपने दिल में याद रख के, अपने दिल में रख के वो सारे लोग अपने अपनी अपनी जगह वापस गए। ठीक है। तो अभी ये कोई पर्पट पढ़ेगा? एनीवन वांट्स टू रीड? I can read again, Prabhuji. ओके। The devotee of the Lord are always in the heart of the Lord, and the Lord is always in the hearts of the devotees. That is the sweet relation between the Lord and his devotees. Due to unalloyed love and devotion for the Lord, the devotees always see him within themselves, and the Lord also, although he has nothing to do and nothing to aspire to, is always busy in attaining to the welfare of his devotees. For the ordinary living beings, the law of nature is there for all action and reaction, but he is always anxious to put his devotees on the right path. The devotee, therefore, are under the direct care of the Lord, and the Lord also voluntarily puts himself under the care of his devotees only. So, all the sages, headed by Vyasadeva, were devotees of the Lord, and therefore they chanted the Vedic hymns after the funeral ceremony just to please the Lord, who was present there personally. All the Vedic hymns are chanted to please Lord Krishna. This is confirmed in the Bhagavad Gita 15.15. All the Vedas, Upanishads, Vedantas, etc., are seeking Him only, and all hymns are for glorifying Him only. The sages therefore performed the exact act suitable for the purpose, and they happily departed for their respective hermitage. Hare Krishna. थैंक यू माता जी।
तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो सारे सेजिस थे वहां पे, उन्होंने भगवान की स्तुति की, यानी कॉन्फिडेंशियल नेम, यानी भगवान की कॉन्फिडेंशियल नेम, यानी यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि उन्होंने भगवान की जो स्तुति की, यानी भगवान के गुप्त नामों से उनको बताया गया है। तो भगवान के गुप्त नाम कौन से बताए गए, यानी जो जो भी नाम उनके डिवोटीज के साथ अटैच होते हैं, जैसे पार्थ सारथी, फिर बोलेंगे यशोदानंदन, ठीक है, मधुसूदन, ठीक, विजय सखा, ये सारे जो नाम होते हैं, अगर भगवान को वो नाम से बुलाते हैं ना, तो भगवान फील मोर अटैच कंपेयर टू इफ ही जस्ट टेल हिम कृष्णा, माधव। नहीं, उनको उनके डिवोटीज के नाम के साथ जोड़ दिया जाए तो ही ही फील मोर प्लीज्ड, ठीक है। और दूसरा फिर बताया गया है कि सारे लोग, देन ऑल ऑफ देम रिटर्न टू देयर रिस्पेक्टिव हर्मिटेज, बीइंग ऑलवेज लॉर्ड कृष्णा विद इन देयर हार्ट। तो यहाँ पे हार्ट की बात हुई है, यानी क्या होता है पता है, हम कोई भी टाइम पर सोचे तो हमारे हृदय में कोई ना कोई होता ही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट के लिए भी हमारे हृदय से कोई निकल गया, यानी एक निकला तो दूसरा आ जाएगा, और हमारे दिमाग में वो चलता ही रहेगा, ठीक है। तो हमें ऐसा करना है कि इफ वी कैन रिमेम्बर कृष्णा मोर, देन दैट विल बी मोर 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 गुड फॉर अस। बिकॉज क्या होता है कि अगर हम, जैसे हम रास्ते में कहीं पे जा रहे हैं और किसी ने हमारे साथ थोड़ा बुरा कर दिया, अगर हम उसको पूरा टाइम अपने दिमाग में रखेंगे, तो क्या होगा कि तो प्रॉब्लम क्या होगी कि हम उसकी कॉन्शियस थोड़ी हमारे में आ जाएगी, और हमारा माइंड पॉल्यूटेड हो जाएगा, वो अच्छा नहीं है, ठीक है। और अगर हम भगवान को, इसकी जगह पे भगवान को याद करते हैं, तो हमारा माइंड भी अच्छा रहेगा और प्योर भी रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज की, हमारे दिमाग में वो चीजें नहीं आती है जो हमने कभी देखी ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आज तक आपने कभी सुना ही ना हो कि कोई एक प्लेनेट एग्जिस्ट कर रहा है जहां पे सिर्फ डायमंड्स ही है, तो वो आपके दिमाग में आएगा ही नहीं कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, कि ऐसा कभी आप सोचेंगे ही नहीं। तो आप फिर उससे क्या होगा पता है, कि आपको ऐसे कोई आपको ऐसे कोई सोच ही नहीं आएगी, ठीक है। अगर अगर आपने कोई हॉरर मूवी, फॉर एग्जांपल हॉरर मूवी रात को देख ली, ठीक है, तो रात को आपको जो सपने आएंगे वो हॉरर मूवी के आएंगे, क्योंकि वो क्या होती है, इंप्रेशन आपके आपके साथ रह जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऐसा बताया गया है कि हमें हमारे दिमाग और दिल दोनों को कृष्णा को सोचना है, यानी दोनों, हम अगर भगवान को सोचेंगे तो हमारे जो भी ख्यालात होंगे वो भगवान के रिलेटेड ही आएंगे। और तो क्या होता है कि हम प्योर हो जाएंगे, और हमारी भक्ति भी बढ़ेगी उसकी वजह से, ठीक है। और भगवान को हम याद कैसे कर सकते हैं, तो जैसे अ, हमें बताया गया है कि श्रवण कीर्तन पाठ सेवनम, तो वो बहुत सारे बताए गए, ठीक है। लेकिन उसमें सबसे जो बेस्ट है ना, वो हियरिंग है। हियरिंग यानी आप चैंटिंग करते हो और इफ यू कैन हियर इट बैक, देन दैट्स अ गुड वन। दूसरा हियरिंग बोलेंगे कि भगवान की कथा सुनना, तो उसको भी हियरिंग कर सकते, तो लेकिन हियरिंग को बेस्ट क्यों बोला गया है, क्योंकि क्या है कि हियरिंग होती है ना, वो 24/7 होती है। जैसे हमें आंखें भी एक सेंस ही है जिससे हम देखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने आंखें बंद कर ली तो हम कुछ नहीं देख पाएंगे। दूसरा है कि कुछ टाइम पर हम सोचते हैं कि नहीं भी मुझे खाना नहीं खाना है, तो मुंह बंद कर लिया, तो हम बोलना नहीं है, तो मुंह बंद कर लिया, ठीक है। तो वो जो सारी सेंसेस होती है, यानी लेकिन सुनने वाली सेंसेस ऐसी होती है कि वो 24/7 चलती है। अगर आप अपने रूम में भी बैठे हुए हो और बाहर कोई टीवी चल रहा है, तो आपको वो भी आवाज आएगी। अगर आप सो भी गए हो और बाहर से कोई ज्यादा आवाज कर रहा है, तो वो आएगी। अगर अगर हम सो गए, हमारी आंखें बंद है, तो हमें कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन कोई आवाज करता है ना, तो वो हमें आवाज सुनाई देगी। तो हियरिंग यानी जो सुनने की शक्ति है, तो दैट इज द बेस्ट, वो 24/7 अवेलेबल होती है। और उससे क्या होगा, अगर हम भगवान का नाम देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारी जो मटेरियल डिजायर है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी, हम प्योरीफाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। हम थोड़े सी बोलते हैं ना कि थोड़ा
इक्विपॉइस उतना उतने लेवल तक तो अभी नहीं पहुंचे, लेकिन धीरे धीरे हम जो डिस्ट्रेस सिचुएशन आती है उसमें उसको हम सही से हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, और इससे हमें हमारा भगवान के लिए लव भी, थोड़ा प्यार जो होगा वो थोड़ा और बढ़ेगा, और दैट्स हाउ वी कैन गो बैक टू गॉड हेड। ठीक है। अ, आगे यहाँ पे बताया गया है कि for the ordinary being. The devotees, the devotees therefore are under the direct care of the Lord. जैसे ही हम डिवोशन स्टार्ट करते हैं ना, तो क्या होता है कि अ, हमारी हमारी जो सिचुएशन होती है, हमारी जो भी इन फ्यूचर जो भी होने वाला था, भगवान पर्सनली लुक आफ्टर करते हैं। तो एक नॉन डिवोटीज की लाइफ और डिवोटीज की लाइफ में उतना ही डिफरेंस होता है कि जो नॉन डिवोटीज होता है ना, उसको जो कर्मास होता है ना, वो कर्मा जो होते हैं उसको भुगतने पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही डिवोशन स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही भगवान का नाम स्टार्ट बोलना स्टार्ट कर दिया, और भक्ति स्टार्ट हो गई हमारी, तो क्या होता है कि भगवान लुक आफ्टर एवरीथिंग फॉर अस। जैसे इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जो डिवोटी बन गया उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं, वैसा वैसा नहीं होता है एक्चुअल में। उसमें ऐसा होता है कि डिवोटीज को प्रॉब्लम आती है, लेकिन फिर उसमें क्या होता है कि जैसे ही हम हमारी भक्ति स्टार्ट करते हैं ना, तो भगवान सबसे पहले तो जो बुरे कर्म होता है वो हटा देता है, फिर अच्छे वाले कर्म भी हटा देता है। लेकिन तो फिर हमें प्रॉब्लम्स क्यों आती है? तो भगवान क्या करता है कि कुछ कर्मास ऐसे होते हैं कि अच्छे वाले या बुरे वाले वो भगवान रखता है, कि वो जो कर्मा है ना, हमें भगवान के लिए जो भक्ति है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए। ठीक है, तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं कि हाँ भाई, ये हो गया वो हो गया। ठीक है। और फिर अ, आगे क्या बताया गया कि ऑल द वैदिक हिम्स आर चैंटेड टू प्लीज लॉर्ड कृष्णा। दिस इज कंफर्म इन भगवद गीता 15.15। तो ये एक वर्स है कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, यानी भगवान बोलते हैं 15.15 में कि अ, मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ। मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। उसका मतलब है कि मेरे से ही स्मृति बुद्धि, स्मृति यानी नॉलेज, ज्ञानम, स्मृति ज्ञानम नॉलेज, इंटेलिजेंस एंड फॉरगेटफुलनेस मेरे से ही आती है। ठीक है। फिर तीसरी लाइन में ऐसा बोला गया है कि वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यो, यानी जो भी वेदास है, बाय ऑल वेदास आई एम टू बी नोन, यानी मुझे मैं आप कोई भी वेदा पढ़ोगे आप मुझे पाओगे। ठीक है। और लास्ट लाइन में ऐसा बताया गया है कि वेदांत कृत वेदाविद चा चा एव चाहम। तो उसका मतलब ये है कि जो भी वेदा है उसका कंपाइलर भी मैं हूँ और उसका नोवर भी मैं हूँ, यानी सारा कुछ, यानी भगवान ही सब कुछ है यार। यानी जो भी आप यहाँ पे इसलिए बताया, ऑल द वेदास उपनिषद वेदांत एक्सेट्रा आर सीकिंग हिम ओनली, एंड ऑल द हिम्स आर फॉर ग्लोरीफाइंग हिम ओनली। यानी जो भी सारा कुछ लिखा गया है, ये सारे वेदांत सूत्र या वेदांत उपनिषद, वेदांत कुछ भी बोलो, वो सिर्फ भगवान के लिए ही लिखे, यानी भगवान के लिए ही लिखे गए। यानी अगर आप उस पे पढ़ते हो तो सारा कुछ भगवान के लिए, भगवान का ही हमें नॉलेज मिलेगा। ठीक है। देन लास्ट इज द sages therefore perform the exact act suitable for the purpose and they happily departed for their respective hermitage। यहाँ पे एक और चीज है कि देखो, भगवान हमें ना इतने सारे इतना लव करते हैं ना, कि एक स्टोरी है कि गोप कुमार की, कि क्या हुआ कि जब गोप कुमार वैकुंठ में पहुंचे, तो उनको तो ऐसा लगा कि भगवान सिर्फ हमें ही लव करते हैं, और थोड़ा सा ही लव करते हो, यानी उनको तो, क्योंकि वो एज अ फ्रेंड थे वहां पे। ठीक है। तो लेकिन वहां पे जैसे ही भगवान ने उनको गले लगाया, जाके बोला कि मैं तुम्हारी कितनी वेट कर रहा था, और फिर सारी बातें बताना स्टार्ट किया, तो भगवान क्या बोलते हैं, ठीक है, कि तुम है ना, पहले पहले के टाइम में मुझे कभी भी याद नहीं करते थे। ठीक है।
और फिर मुझे ऐसा लगा कि एक दिन तुम मुझे याद करोगे, एक दिन तुम मुझे याद करोगे। तो तो है ना, वो मैं सोच से ही मैं नाचने लगता था। भगवान ऐसा बोलते हैं कि मैं नाचने लगता था, ठीक है, फिर भी तुमने याद नहीं किया। फिर मुझे ऐसा लगा कि यार ये जो सारा लॉ ऑफ नेचर जो बनाया है मैंने, तो मैं क्या करूं। तो भगवान बोलते हैं मैंने वो नेचर को थोड़ा ब्रेक किया, और मैंने तुम्हें गोवर्धन में बोला, गोवर्धन में जन्म दिया। तो उससे क्या हुआ कि तब जाके तुम मेरे साथ आए, खेले, और तुम्हारी भक्ति वापस आई, और एट द एंड जब तुम मरे तो तुम वैकुंठ में वापस आ गए। ठीक है। तो देखो, भगवान भगवान हमारे लिए कितना वेट करके बैठे हैं कि नहीं, एक बार हम उसका नाम ले ले, एक ही बार नाम ले ले, और वो एक बार पलट के मेरे सामने देखे, हम उनके सामने देखे, भगवान के सामने। ठीक है। तो भगवान तो ईगरली वेट ही कर रहा होता है कि अगर ऐसा हो जाए तो मैं उसको भक्ति दे दूं, और फिर अ, उसी तरह से वो मेरे पास वापस चला आए। तो बस, आई थिंक दैट इट इज फॉर टुडे। इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, या। प्रभु जी, जो दो सोल के बारे में हम फर्स्ट वर्स में कर रहे थे डिस्कस, दैट्स एप्लीकेबल ओनली टू द एग्जिस्टिंग डिवोटीज ओनली, जो फर्स्ट मतलब जो ओरिजिनल सोल फॉर्म में आते हैं, जो जो डिवोटीज। नित्य सेवक जो होते हैं ना, उसके लिए ऐसा बताया गया, क्योंकि मैंने जो प्रिपरेशन कर रहा था ना ये वाला, तो उन्होंने भी बोला कि ये जो है ना वो सबके लिए अप्लाई नहीं होता है। जो नित्य सेवक होते हैं और उनको कुछ अलग से ड्यूटीज दी जाती है कि जाओ ये वाला डिपार्टमेंट भी संभालो, तो उस टाइम पर वो वाला सीन होता है कि दो सोल, यानी भीष्म देव के कॉन्टेक्स्ट में बताए गए तो वसु और नित्य सेवक खुद, यानी दो दो सोल। उसका आचार्य ने वैसे ही बताया गया कि हाँ ये ऐसे चलता है, जैसे हमने काफी सारे एग्जांपल देखे कि चैतन्य महाप्रभु, हरिदास ठाकुर। तो आई थिंक वो एक्सोल्टेड डिवोटीज हो गए, उनके लिए ही होगा। मेक सेंस प्रभु जी, हम्म, एब्सोल्युटली। हम्म। प्रभु, दो सोल्स हमारी बॉडी में तो कितनी भी सोल्स हो सकती है ना, कितनी सारी सोल्स हैं। कैसे प्रेग्नेंट प्रभु? लेडी के तो वैसे ही दो सोल्स होती हैं, राइट? ह्यूमन, दो ह्यूमन सोल्स, ऑन टॉप ऑफ इट बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी में सोल्स हैं, तो देर विल बी इनफाइनाइट सोल्स इन ईच एंड एवरी वन। ये प्रभु जी, ये बात सही है हमारे लिए। थैंक यू प्रभु जी फॉर करेक्टिंग। नहीं, हाँ जी। मैं देख रहा था ना उसमें, आई हैड द सेम क्वेश्चन, एंड वो प्रभु जी ने बताया कि हमारे आचार्य वैसे ही ऐसे ही बताते हैं, लेकिन नहीं, ये बात सही है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी फॉर करेक्टिंग हियर। नहीं नहीं प्रभु, ऐसा मैं करेक्ट नहीं कर रहा, मैं तो वैसे ही बता रहा था कि नहीं नहीं मतलब। नहीं 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 प्रभु जी, सही सही है ना, देखो हाँ मुझे ऐसा लगा कि दो सोल कैसे हो सकती है, लेकिन माता जी ने जो क्वेश्चन पूछा और आपने जो आंसर बताया, तो हाँ, दैट मेक सेंस प्रभु जी। हाँ, क्योंकि मेरे भक्ति वृक्षा में अभी वही चल रहा है, हु एम आई वाला टॉपिक ही चल रहा था, तो उसमें यही था। तो सोल और घोस्ट, इस पे पूरा 1 घंटा इसी घोस्ट में ही चला गया, और सोल में ही चला गया, इसीलिए समझाते समझाते कि भाई कितनी सारी सोल्स हो सकती हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि कौन सी, फिर वो आगे क्वेश्चन आता है कि कौन सी सोल कंट्रोल कर रही है, जो बैक्टीरिया अंदर, वो वाली सोल क्यों नहीं कंट्रोल कर रही, वो घोस्ट पोजेशन और ये सब चल रहा था। तो अभी रिसेंट था, तो मैंने कहा नहीं नहीं, सही है। थैंक यू प्रभु जी। बढ़िया क्लास प्रभु, थैंक यू। ओके, alright then, thank you everyone. Hare Krishna, we'll see you on Monday again. हरे Okay, कृष्णा, थैंक यू प्रभु। Hare Krishna माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। मंडे को भी आप ही ले रहे हैं मितुल प्रभु? नहीं, मैं मंडे आई थिंक निशांत प्रभु लेंगे। अच्छा, वो आई फॉरगॉट द नेम। उनकी स्टोरी मुझे, आई वाज वेरी क्यूरियस टू नो, बट आई पुट इट इन द अपना ग्रुप में। हाँ हाँ। उनका, श्योर। कृष्ण ने उनको श्राप दिया था ना, द एट डिवोटीज हु वसुस। आर स्टिल अलाइव इन दिस वर्ल्ड। हाँ 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 हाँ। तो मैं नाम, मैं आई हैव रिटन इट समवेयर, बट आई वाज वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट दैट स्टोरी, सो आई विल आस्क इन द नेक्स्ट लेक्चर। नो वरीज प्रभु जी, ऑल गुड। ओके ओके माता जी। ऑलराइट। चलो, हरे कृष्णा, चलो। हरे 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 कृष्णा माता कृष्णा। जी।
हरि हरे कृष्णा बोल। डियर। हरे कृष्णा। बाय।